Hello children, good morning all. Standard 5, English 1, Chapter 2, Part 5. Okay, we have completed the lesson, that is friendship. The lesson was about friendship. And we have done some activities, answer the following questions, exercise and everything. Right? Now, we are going to do in page 14, B exercise. Activity 6, B exercise. Okay? Homophones and homonyms. First of all, I will explain you what is homophone. Okay? Homophone means two words which has different spelling, same pronunciation, different meaning. Different spelling, same pronunciation and different meanings are called homophones. Those words are called homophones. Having different spelling, different meaning, same pronunciation. That is called homophones. यानी spelling different होगा, उच्चार same होगा, right ऐसा उच्चार, that is pronunciation same होगा, और spelling different होगा, that is called homophones. Okay? I hope you have understood the homophones. Afterwards I will explain these words one by one. Now we will pass on to homonyms. What are homonyms? Homonyms means same spelling, different meaning and same spelling, same pronunciation and different meaning is called homonyms. पहले तो homonyms ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं. What is homo and nym? Homo means same. Homo means same होता है वो. Nym means name. Nym का मतलब है name. होमोनिम में क्या होता है? स्पेलिंग भी सेम होता है, उच्चार भी सेम होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है. दैट इज कॉल्ड होमोनिम्स. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस वर्ड्स. आई हैव रिटन सम वर्ड्स फॉर यू. ओके, आपको भी कोई कुछ ज्यादा वर्ड्स लिखना है होमोफोन्स में. मैंने थोड़ा वर्ड्स लिखा है होमोफोन्स का और होमोनिम्स का. And at home, you students should try some other more words for homophones and homonyms. Now, I will explain you. So you can see write and write. उच्चार सेम है, WRITE, Okay, spelling अलग है और मीनिंग भी अलग होता है. Write यानी लिखना, and this write is correct. Okay. Then by. तीनों का उच्चार सेम है, तीनों का स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग होता है. दिस इज अ प्रीपोजिशन. दिस बाय यानी बाय बोलते हैं और दिस बाय यानी खरीदना, कुछ परचेज करना. नाउ वे एंड वे मीन्स रास्ता. दिस वे मीन्स वजन करते हैं ना, दैट वे. सम एंड सम, यू नो सम, मैथ सम्स. And some means thoda. Some fruits, some vegetables, वो some. Okay? Break. ये जो ब्रेक है, कार की ब्रेक, BRAK, और ये जो ब्रेक है, तोड़ना, ब्रेक करना. Alms यानी to beg, कुछ देना, भीख में देना, that is called alms. And this alms यानी हाथ. ये जो arms है ना, body part, that is alms. Byte and byte, this is the computerized word. Byte आपको मोबाइल में गीगाबाइट वैसा आता है वो. And this byte यानी काटना, बाइट करना, कुछ टुकड़ा करना दांतों से. Then cell and cell. This is cell जो हमारे बॉडी में सेल्स है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. This यानी बेचना. Then heal and heal. This heal means कुछ हमको लगता है कि heal हो जाता है वो. And this heel means एड़ी, पैर की एड़ी होती है ना, this एड़ी is called the heel. Then here means to hear, सुनना. Okay, here means यहाँ.
यहाँ बोलते हैं ना, हियर इज अ बुक, हियर इज अ टीचर, हियर इज अ बैग. देन आवर यानी टाइम, यू नो, 1 hour, 2 hour, एंड दिस आर मीन्स क्या है, हमारा, आवर बुक, आवर क्लास, लाइक. अभी आपको क्या करना है, वैसे होमोफोन्स वाले वर्ड्स आपको 10 लिखना है इन योर नोटबुक. मैंने तो लिखा ही है. इससे अलावा कोई और 10 वर्ड्स यू हैव टू फाइंड आउट एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. होमोफोन्स. नाउ होमोनिम्स. I have explained you what is homonyms. Same spelling, same उच्चार, different meaning. Rock. एक rock जो होता है पत्थर, stone, kind of stone. दूसरा rock है music. Rock music बोलते हैं ना वो, right? तो हो गया different meanings. Then bat. Cricket bat आता है. Then bird. You know that चामा चिड़िया बोलते हैं, that bat. Right? Then ring. फोन की रिंग बजती है, घर की बेल रिंग, दैट इज रिंग. एंड दूसरा रिंग है अंगूठी, इसको भी हम रिंग बोलते हैं. टाई. टाई यानी गले में जो बांधते हैं हम, स्कूल की टाई होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टाई. दूसरी टाई है बांधना, टू टाई द लेस. ओके. वॉच. एक तो घड़ी होती है, वॉच, राइट. दूसरा वॉच है टू वॉच द टीवी, टू वॉच द प्रोग्राम, टू वॉच टेलीविजन, लाइक उसको भी वॉच बोलते हैं. देन नेल. नेल यानी हमारा नाखून को भी नेल बोलते हैं, और जो खीली होती है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द नेल. ओके. सो वैसे डिफरेंट मीनिंग, सेम स्पेलिंग होता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द नेल. नाउ राइट. राइट यानी करेक्ट. दूसरा राइट है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, वो वाला राइट. देन फ्लाई. फ्लाई, मक्खी को भी फ्लाई बोलते हैं, और उड़ना होता है उसको भी फ्लाई बोलते हैं. देन लाई. लाई यानी टू लाई डाउन, लेट जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लाई. दूसरा लाई है फॉल्सहुड, झूठ बोलना. झूठ बोलते हैं ना, यू आर लाइंग, ऐसे बोलते हैं हम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लाई. एक्सप्रेस, फास्ट. I want express work, fast work. दूसरा एक्सप्रेस है कुछ हम फीलिंग दिखाते हैं, वी आर एक्सप्रेसिंग समथिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सप्रेस. देन फेयर, यू नो, वेरी गुड. ओके. और फेयर होते हैं, गोरा चिट्टा होता है, उसको भी फेयर बोलते हैं. बुक. बुक एक रिजर्वेशन होता है, बुक द टिकट. बुक करते हैं ना, रेलवे टिकट बुक करते हैं, बस की टिकट बुक करते हैं, दैट इज बुक. Then bark. ट्री का bark होता है, and dog is also barking. Sound of the dog is also called bark. So these are all the homonym words. Okay. What you have to do? You have to write more words for homonyms. Okay. जैसे मैंने लिखा है, वैसे आपको और भी words ढूंढ के और 10 words आपको नोटबुक में लिख देना है. Okay, this is your homework. Now, we will pass on to activity 9 in page number 15. ये सब जो एक्टिविटी है 7, 8, ये सब हम स्कूल में करेंगे. ओके. अभी करने का कोई मतलब नहीं है. So we are passing on to activity 9, which is a poem. Okay, that I will explain you. Read and enjoy the following poem. In this poem, a young girl has expressed her feeling for a friend in a direct and touching way. The poem is about the importance and responsibility of being a friend. हम फ्रेंड तो बना देते हैं, राइट? लेकिन फ्रेंड की और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जवाबदारी क्या है, और फ्रेंडशिप का इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. वो इस पोएम में समझाया गया है. दैट वी विल डू नाउ. फ्रेंडशिप. 2 girls are here. Okay, you can see friendship. When you are sad, I will dry up your tears. When you are scared, I will ease your fears.
अभी फर्स्ट स्टैंजा में ऐसा है, व्हेन यू आर सैड, जब तू सैड होती है ना, कि फ्रेंड दूसरी फ्रेंड को बोलती है, गर्ल दूसरी गर्ल को, अपनी जो खास फ्रेंड है उसको बोलती है कि व्हेन यू आर सैड आई विल ड्राई अप योर टीयर्स। जब तू दुखी होगी और रो पड़े होगी, तब मैं तुम्हारा जो आंसू है ना उसको मैं पोंछूंगी। मेरी जवाबदारी है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्राई अप योर टीयर्स। व्हेन यू आर स्कैर्ड आई विल ईज योर फियर्स। जब तू डरती है, ओके, स्कैर्ड यानी डरना, जब तू डरती है तब आई विल वैनिश, आई विल मेक डिसअपियर योर फियर। सब तुम्हारा डर जो है वो सब मैं मिटा दूंगी। ओके, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ फ्रेंड। व्हेन यू आर वरीड आई विल गिव यू होप। इफ यू वॉन्ट टू गिव अप आई विल हेल्प यू कोप। व्हेन यू आर वरीड, जब तू चिंता में होती है ना, वरीड यानी चिंता में होती है, आई विल गिव यू होप, मैं आशा की किरणें तुम्हारे पास लाऊंगी। आई विल बी योर होप, मैं आशा दूंगी तुमको, मैं तुमको निराश होने नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरी जवाबदारी है। ओके, वो मेरा इंपॉर्टेंस है फ्रेंडशिप का। इफ यू वॉन्ट टू गिव अप आई विल हेल्प यू कोप। अभी कुछ तुमको छोड़ देना है, गिव अप करना है, तो आई विल हेल्प यू, वो गिव अप करने में मैं तुमको हेल्प करूंगी। ओके, नाउ थर्ड स्टेंजा, व्हेन यू आर लॉस्ट एंड कांट सी द लाइट आई विल बी योर बीकन शाइनिंग सो ब्राइट। पहले यहाँ पर बीकन का मतलब है लाइट हाउस। जब आप दरिया किनारे जाओगे तो वहां पर लाइट हाउस होता है। वो लाइट हाउस इसीलिए होता है कि दूर से जो शिप आती है ना उसको रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस होता है। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप में बीकन का क्या काम है, आई विल एक्सप्लेन यू। व्हेन यू आर लॉस्ट एंड कांट सी द लाइट, जब तू कहाँ पर भटक जाती है, खो जाती है, लॉस्ट हो जाती है और तुमको सब जगह पर अंधेरा ही दिखता है, सब जगह पर क्या दिखता है, अंधेरा ही दिखता है, तो मैं क्या बनूंगी, तुम्हारा लाइट हाउस बनूंगी। आई विल बी योर बीकन शाइनिंग सो ब्राइट। मैं लाइट हाउस बन के इतना शाइन करूंगी कि तुमको पूरा रास्ता इजीली दिखाई देगा। ओके, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फ्रेंड। दिस इज माई ओथ दैट आई प्लेस टू द एंड। व्हाई यू मे आस्क, because you're my friend. Nicole Richie. Okay, this is my oath. ये मेरी प्रॉमिस है। ओथ यानी प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस है कि आई प्लेस टू द एंड, मरते दम तक, एंड यानी मरते दम तक इस ओथ को मैं निभाऊंगी। वाई, क्यों, तुम मुझे पूछ सकती है। यू मे आस्क, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड है, इसीलिए मेरी जवाबदारी है कि तुमको डर से बचाना है और सब जगह पर तुमको रास्ता दिखाना है, वो मेरी जवाबदारी है। सो, एंड दिस पोएम इज रिटन बाय निकोले रिची। शी इज ऑल्सो अ लेडी, ओके, एंड शी इज sharing her feelings with us as a friend. Okay, some keywords are written here, I will tell you. Dry up, dry up का मतलब है wipe, पोंछना. Okay, give up, accept, defeat, stop trying. give up यानी कुछ हमको छोड़ देना है, stop करना है. beacon यानी लाइट हाउस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया लाइट हाउस. और गाइड, यहाँ पर गाइड है लेकिन बीकन का मतलब है लाइट हाउस, जो दरिया के किनारे पर होता है शिप को रास्ता दिखाने के लिए. प्लेज, अ सिंसियर प्रॉमिस यानी सच्चा वाला प्रॉमिस. कोप, डील विथ, एडजस्ट, गेट ऑन. ओके, कोप अप यानी डील करना सिखाना है, एडजस्ट करना सिखाऊंगी, ये उसका मीनिंग होता है. Okay, so for today this much is enough, and all these question answers in page number 16 and exercise I will send you through WhatsApp.
ओके एंड दिस एक्सरसाइज फॉर टाइम बीइंग यू हैव टू कैंसल, यानी वी विल डू आफ्टरवर्ड्स इन द स्कूल. ओके, इतना ही है, वो हम आपको कैंसिल करना है अभी के लिए, क्योंकि वो स्कूल शुरू होते ही हम लोग करेंगे. ओके, तो जो रिमाइनिंग पार्ट है मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगी. ओके, so till then go through the lesson, go through the homophones and homonyms, homework complete कर देना. Okay, thank you very much, bye.